Auspicious day of World Tourism Day, I, Mohammed Tawheed, have the immense honor and pleasure to be your host. Now, before I go any further, I would like to officially start today's event by requesting AD Tourism, Mr. Rahmatullah Bhatt and Mr. Ravish to come forward and engage in the traditional welcome of the guests by donning them with khataks. Along with the Prince of Poland and Sweden, took part. With that short trivia, I now request Mr. Jigmet Gyaltsen to kindly come forward and give the welcome speech. Good morning to one and all present here. Our today's chief guest, Shri Aga. Our chief guest, Isi Shri Aga Mustafa Mosli. I would like to welcome you all to this beautiful event of World Tourism Day. And this time, the theme is tourism and peace. So, with this, as we all know, tourism brings together people and their cultures. And as people connect through tourism, it lays a foundation for peace. So let's celebrate tourism and peace for a better world. Thank you. And once again, Session with the stakeholders. And for this interactive session, I will moderate called pestle analysis method. In this, we discuss the political, economic, social, technological, legal quote from my own one of the articles that I've written. Question, so that they know you are alive. A society is only alive. Anyone who would like to answer this question? A very good morning to all of you. I'm Zahir, so I'm one of the stakeholders in tourism. For the years, this place, Kargil, just answering straight to your question, the place has always had this tremendous potential to attract tourism, and there have been multiple reasons that compared to our neighbors, like if we just say Srinagar or Leh, other states, other parts of the state, we have not been able to somehow attract tourism and make it a robust part of our industry because of multiple factors. They are our own factors, and I'm not going to get into the negativities of why Kargil has not been able to attract tourism that aggressively compared to Leh or compared to Srinagar or any other destination in the country. But in the last, especially 5 to 10 years, by the initiatives definitely by the tourism department and individual stakeholders, it's a completely different scenario in 2024. The current status of women with respect to tourism in our UT. मेरा नाम मुजम्मिल है। मैं भी टूरिज़म इंडस्ट्री से वास्ता रखता हूँ। पिछले 10 साल से करगिल में टूरिज़म इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। तो जैसे एक स्टूडेंट का यहाँ सवाल था कि हमारे यूटी में खासकर कि करगिल की कॉन्टेक्स्ट में मैं बोलूँगा कि लड़कियों का क्या स्टेटस है। तो जैसे हर इंडस्ट्री में एक तरह का बायस हमेशा हमने देखा है, जेंडर बायस देखा है कि थोड़ा सा मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री रहा है। तो टूरिज़्म में भी मैं समझता हूँ कि ये एक मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री रही है काफ़ी लंबे टाइम से। और लेकिन ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स भी हैं हमारे लद्दाख के अंदर, जहाँ पे जैसे आप अगर हम लेह में देखेंगे तो एक ऑल वुमेन एक ट्रैवल कंपनी भी है जो जहाँ पे सिर्फ जिसके ओनर भी फीमेल है, जिनके सारे जो एम्प्लॉयज़ फीमेल्स हैं, सारे गाइड्स भी फीमेल्स हैं। तो एक अच्छा एग्जांपल है। और बहुत सारे केसेस में करगिल में भी जब हम बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करते हैं तो पिछले 10 साल के मुकाबले में अब हम देखते हैं कि काफ़ी सारी लड़कियां जो हैं आगे आ रही हैं, पार्टिसिपेट कर रही हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में हिस्सा ले रही हैं। तो ये एक माइंडसेट प्रॉब्लम है, मुझे लगता है कि लड़कियों को बाहर नहीं निकलना चाहिए या लड़कियों को इस तरह के आउटडोर में काम नहीं करना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि ये एज पेरेंट्स, एज गार्जियंस हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने
खासकर जो यंग लड़कियां हैं उनको एनकरेज। द्रास में एक लड़की है अंजुम करके मुश्को में, उन्होंने पिछले महीने हमारे साथ एक नेचर गाइड ट्रेनिंग का प्रोग्राम किया था और अभी पिछले 2 महीने से सर वो एज अ वाइल्ड लाइफ ट्रैकर हमारे साथ फुल टाइम काम कर रही है और वो इतना अच्छा काम कर रही है और बहुत की तरफ जो है वो एनकरेज नहीं करता है जैसे अभी तक बात हुई, बट दिस इज नॉट सो एक्चुअली। जितने भी हम बिजनेस में एंटरप्रेन्योरशिप में वुमेन को देखते हैं तो वो थोड़ा सा कंफर्ट जोन ढूंढती है। रिसेंटली वी हैव डन अ सर्वे ऑन वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, तो उसमें हमें मेजॉरिटी ऑफ द वुमेन्स जो है वो हमें रेडीमेड गारमेंट्स में या रेडीमेड शॉप्स में खुद अपने वेंचर जो है वो स्टार्ट करके वो देखते हैं। तो जब हम उनसे क्वेश्चन पूछते हैं तो वो कहते हैं कि दिस इज इजी टू डू। अब क्योंकि इंडस्ट्री इटसेल्फ इज नॉट सो ग्रोन इन करके, इसलिए वो अट्रैक्ट वुमेन्स को या फीमेल्स को नहीं कर रहे। सेकेंडली हमारे यहाँ एक मिसकंसेप्शन है कि जब हम टूरिज्म की बात करते हैं, एंड इट वाज शोन सम वे और द अदर इन दैट मैनर ओनली, कि जहां पर टूरिज्म में फीमेल होगा इट मींस दैट they will be showcasing some dance activities or song activities or some that related activities. Otherwise, tourism is a very big industry. Hospitality management itself, women can do the things more perfectly than the man. और जितने भी अगर हम देखते हैं कि इवन रिसेप्शनिस्ट बोलो, ट्रैवल में भी इवन गाइड्स हैं, तो ये सारी चीज़ों को जो है वो बेटर परफॉर्म करते हैं। The thing is कि हमें इंडस्ट्री जैसे जैसे ग्रो होगा एवेन्यूज ढूंढ रहे हैं। अदरवाइज हम देखते हैं कि आज जम्मू का है, चंडीगढ़ का है, दिल्ली का है, हमारे गर्ल स्टूडेंट जो है बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं आउटसाइड यूटी लद्दाख जाके स्टडी करने के लिए। तो ऐसा कोई बैरियर अपेरेंटली हमें दिखाई नहीं देता है। समटाइम्स इट इज फैब्रिकेटेड और मैन्युफैक्चर्ड इन दैट सेंस, बट एक्चुअली सोसाइटी जो है उसके लिए इस सेंस में कभी भी देखते नहीं है। तो आज तो जितना ऐसा कोई पार्शियल सेग्रीगेशन नहीं करते कि डोमेस्टिक है इंटरनेशनल है, लेकिन इस ट्रैवल प्रोटोकॉल गवर्नमेंट के हिसाब से कुछ गाइडलाइंस हैं जो कि भाई अगर जैसे कोई फॉरेनर आपके एरिया में विजिट कर रहा है तो उनके लिए एक मैंडेटरी है जिसको कॉल फॉर्म सी। तो हमें वो फॉर्म सी भर के ऑनलाइन रियल टाइम में वे टू सेंड इट अक्रॉस टू कंसर्न अथॉरिटी कि भाई ये फॉरेनर है। उसमें स्पेसिफिकली गाइडलाइंस है दैट अगर कोई पाकिस्तानी, बांग्लादेशी या चाइनीज नेशनैलिटी का हो तो इन रियल टाइम वे टू इन्फॉर्म द लोकल SHO एंड इन्फॉर्म कि भाई इस नेशनैलिटी का है। वो बाकी जो भी प्रोसेस है उतना ही है। लेकिन हाँ, जब आप फॉरेन नेशनल्स के साथ स्पेशली डील करते हैं तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको बहुत स्पेसिफिक होनी पड़ती हैं। वी गॉट टू बी वेरी केयरफुल कि जब वो इंडिया जैसे देश में ट्रैवल करते हैं, वे आर स्टिल परसीव्ड एज अ थर्ड वर्ल्ड, तो उनके कुछ एडवाइजरीज आते हैं उनके रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट या उनके जो फॉरेन ऑफिसर्स हैं कि भाई ये चीज़ आप अवॉइड कीजिएगा। तो वो एक माइंडसेट लेके आते हैं, वो एक परसेप्शन लेके आते हैं, ठीक है ना। आज अगर आप ये बोले कि एक फॉरेन टूरिस्ट के लिए वो कारगिल का एक अलग परसेप्शन लेके आता है और लेह का एक अलग परसेप्शन लेके आता है, लेकिन जब वो आपके कांटेक्ट में आएगा तो ये ऑनर्स हमारा बनता है कि हम वो ऑलरेडी उसका जो प्री कंसीव्ड नोशन है उसके जहन में, जैसे एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, जैसे हम जब कारगिल को सेल करने जाते हैं, बाकी तो छोड़िए आधा हिंदुस्तान आज भी कारगिल को एक जंग के मैदान की तरह जानता है। यू आर परस्यूड एज ए वॉर जोन। अब AI कारगिल आइटिनरी दीदी आपको वार का जिक्र ही नहीं होगा। तो एक जो ठप्पा हमारे पीछे लगा था कि भाई ये युद्ध का मैदान है, that jinx of and that attack of that Kargil is a war zone. So otherwise, in terms of the treatment, in terms of how to sell a package, in terms of how to deal with the tourist, protocols are almost pretty much the same whether he is a domestic tourist or an international tourist. My name is Mahbub Ali. So my question to you is that, sir, with the increase of tourism, we have seen substantial amount of damage to our environment, our local ecosystem. So what is the way ahead to make the tourism industry more eco-friendly? And sir, my another question is that since if we go outside as a tourist, it is compulsory for us to speak in their language. So since Urdu and Laki and other languages are not universal, and thus we have to speak in their language and they have to speak in their language as well here. So एक्सेसिव टूरिज्म की वजह से
काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी होते हैं, वो सही बात है। टूरिज़्म जैसे मैं कहता हूँ एक ग्रे एरिया है, इसमें ब्लैक एंड वाइट कुछ नहीं है, तो इसमें पॉजिटिव्स भी हैं तो इसमें नेगेटिव्स भी हैं। लेकिन टूरिज़्म को अगर हम एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से कंडक्ट करें, एक सस्टेनेबल तरीके से कंडक्ट करें, तो इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ओवरशैडो कर जाएंगे उसके नेगेटिव इम्पैक्ट से। ऐसा तो है नहीं कि आप इसके अपनी इम्पैक्ट को पूरा ज़ीरो करोगे। आप ट्रैवल करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह फ़्लाइट भी ले रहे हो तो आप अपने कार्बन फुटप्रिंट बढ़ा रहे हो। तो एज ए टूरिस्ट भी आपके कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि आप रिस्पॉन्सिबली कैसे ट्रैवल करें, और एज टूरिज़्म ऑपरेटर्स हमारे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि हम लोग कैसे कंडक्ट करें टूर्स को। तो जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, अगर आप लद्दाख में देखें तो लद्दाख में टूरिज़्म बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड है कुछ जगहों पे। जैसे मान लीजिए लेह सिटी बहुत ज़्यादा अर्बनाइज्ड है, एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड है। 3-4 डेस्टिनेशंस हैं जो बहुत ही ज़्यादा ओवर क्राउडेड हो जाते हैं, जैसे पेंगोंग है, नुब्रा है, लेह है। ये डेस्टिनेशंस बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो जाते हैं। लेकिन और कुछ ऐसे कॉर्नर्स भी हैं जहाँ पे टूरिस्ट पहुँचते ही नहीं है। बहुत सारे रूरल एरियाज ऐसे हैं जो जहाँ पे देखने के लिए करने के लिए बहुत कुछ है लेकिन वहाँ पे पहुँचते नहीं है। तो अगर हम टूरिज़्म को डिसेंट्रलाइज कर दें थोड़ा सा और रूरल टूरिज़्म पे ज़्यादा फोकस करें, होटल्स की जगह अगर आप होम स्टेज में रहने की कोशिश करें, या आप जिस गांव में हो आप अगर आप वहाँ पे होम स्टेज अपने सेटअप करें, होम स्टेज प्रमोट करें, अपने गांव में रूरल एक्सपीरियंस सेटअप करें। करगिल आया खुशबू, फूल तो फूल कांटों में भी आया खुशबू। और उसके बाद टूरिज़्म से जुड़ी हुई आज है, तो शायद मैं तो टूरिज़्म के लिए कहने के लिए नहीं आया था, मैं आया था इन प्यारे से बच्चों को अपना हालत ज़िंदगी कहने के लिए। कहना तो पड़ता है क्योंकि आज इस महफिल से जुड़ी हुई है। टूरिज़्म आया तो बाहर आया, टूरिज़्म आया तो बाहर आया, गुर्बत फना का पुकार आया, तारीख में चराग का असर आया, हस्तियों को यहाँ पर कतर आया, आपका कहने पे अली इधर आया। तो तब नहीं तो हम एक दूर दराज देहात का रहने वाला है, आखिरी बॉर्डर थंग में रहने वाला। तो शायद सर लोग अभी अंग्रेजी में दे धड़ाधड़ बात कर रहा था, मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा था। तो मैं कहता हूँ कि अंग्रेज को तो हमने बगाया है, तो जबान को क्या प्यार करना, अपने हिंदी जबान में तो करना चाहिए। दूसरे में जो कहते हैं खुल के कहते हैं। जब मैं पाकिस्तान गया तो लोगों ने कहा भाई वहाँ थोड़ा आप संभाल के बोलना क्योंकि हमारा देश नहीं है। मैंने बोला यार खुदा से जब पर्दा नहीं तो बंदूक से पर्दा क्या करूँ। एक दूसरे में प्यारे से बच्चों, आप लोगों को मैं यही कहूँगा, आज के इस मौके पे टूरिज्म एक ऐसा नहीं आया हो, लेकिन उस यतीम बच्चे को देखने के लिए नहीं आया है। शायद गोवाली ने कहते हैं कि कुरान शरीफ में यह कहा है अफला ताकिलून, अफला ताकिलून, तुम अकल क्यों नहीं करता है। अकल करने का हुक्म दिया अल्लाह ताला ने, मैं उस हिसाब से मैं अकल करता हूँ। तो आप लोग कोई, मेरे माँ बाप ने मुझे कुछ नहीं किया है। एक जब मैं पाकिस्तान गया तो मेरे मम्मी मुझे कहता था बेटा आपको मिलने के लिए पाकिस्तान के कमिश्नर साहब आ रहे हैं, बड़े बड़े लोग आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं, बड़े बड़े पाकिस्तान के अखबार में आपका नाम आ रहे हैं। बेटा हम तो आपको 5 साल में छोड़ कर आए थे, लेकिन आपको इतना महान आदमी किसने बनाया। मैं कहते थे कि हवलदार साहब मुझे खाना खिलाते थे, सूबेदार साहब मुझे कपड़ा पहनाते थे। तो मेरे मम्मी कहते थे बेटा आपको इस असली माँ को मेरा सलाम कहना। आज कोई लास्ट सिक्योर को फौजी आते हैं कहते मेरे माँ ने आपको सलाम भेजा है। हम वो माजूर आदमी था, वो आदमी, लेकिन आज मिस मन पे पहुँचाने वाला आप और आपका मम्मी पर यही लड़ा है। तो मैं ये कहने जा रहा हूँ कि नबी सर पे अमल बेतना फुरीदीनी अलाम पोइन एखा मिंचा शिचा metna thate bespi salam poin adib kun na abid kun लास्तो सी होंगी कलाम पोइन। प्यारे बच्चों मैं आपको यही कहूँगा, आपका किरदार सही रहेगा तो इंशाल्लाह आप एक बहुत बड़ा आदमी बन जाएंगे। तो आप मैं यही कहते हैं बच्चों को, देखो ये टूरिज्म से हट कर मैं आपको इसलिए कह रहे हैं कि शायद मेरे दिल का खुदा, मेरे दिल की जो तकलीफ आप तक पहुंच जाए। तो शायद मेरे एक लालिश है, बहुत बच्चे इसी तरह मेरे घर पे आते रहते हैं, शायद आपको देख सकते हैं यूट्यूब में, आप देखो। बच्चों को मैं सिर्फ एक चीज़ कहते हैं, मेरे एक लालिश है आप लोगों से भी कि आप बबूढ़ा था, आप महंगा खाना खाते थे, आप मम्मी पापा से नहीं मानते थे। अभी यही उम्र आपका 10 ईयर्स है,
ये या आप एक अच्छा आदमी बन सकते हैं या इसी उम्र में आप एक बुरा आदमी बन सकते हैं। तो आपको अपना दिमाग से लड़ना है, आपको अपना अकल से लड़ना है। क्योंकि मैं अपना ज़िंदगी में मुझे झूठ बोलने का हिम्मत नहीं था, मुझे चोरी करने का हिम्मत नहीं था। शायद इसी की वजह से आज मैं इस स्टेज पे बैठने का काबिल बना हो। तो आप लोगों से मैं यही कहते हैं, मम्मी पापा आपका दाएं साइड बाएं साइड में है, मेरे बच्चों को कहते हैं बेटा आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? तो बच्चों को तो कोई कुत्ता है, कोई बिल्ली। मैं कहते हैं आपका मम्मी पापा सबसे बड़ा दुश्मन है। तो आप लोग हैरान हो जाते हो। मम्मी पापा, कोई भी दुनिया में मम्मी पापा ऐसा नहीं है कि अपने बच्चों के लिए तकलीफ पहुंचाए। कोई मम्मी पापा ऐसा नहीं है कि अपने बच्चे भूखा रहे। ये अल्लाह ताला ने इनके ऊपर मोहब्बत, मम्मी मुझे ऐसी दे रहे हैं, मेरे मम्मी मुझे नया कपड़ा दे रहे हैं, ये सारे मेरा आने वाले ज़िंदगी के लिए सही नहीं है। मुझे खुद मेहनत करना पड़ेगा इस उम्र में। जैसे हमारा बल्कि ज़बान हम पढ़ते हैं, लद्दाखी ज़बान हम पढ़ते हैं, तो किसी दोनों esteemed guest, जनाब एग्जीक्यूटिव काउंसलर साहब, आका मुश्तबा साहब, प्रिंसिपल मैम, एक्टा वाइस प्रेसिडेंट मुजम्मल साहब, एक्टा जनरल सेक्रेटरी, बाकी एक्टा स्टेक होल्डर्स, फैकल्टी मेंबर्स, हमारे रवीश जी, प्यारे बच्चों और मेरे डिपार्टमेंट के सारे एम्प्लॉयज़, मैं आप सबका वेलकम करता हूँ इस वर्ल्ड टूरिज़्म डे पे जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं आज के दिन, जिसका थीम है टूरिज़्म एंड पीस। टूरिज़्म जो है वो हमें जोड़ता है एक दूसरे से। वी डेवलप, थोड़ा सा इंग्लिश बोलना पड़ेगा सर बीच बीच में। टूरिज़्म जो है वो हमें म्यूचुअली कनेक्ट करता है एक दूसरे से, और उससे हमारा कल्चरल एक्सचेंज होता है। जो भी टूरिस्ट बाहर से आता है वो आपके कल्चर को देखने आता है, ठीक है, और उससे एक और इम्पैक्ट पड़ता है कि आपका इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। क्योंकि टूरिस्ट आएगा, उसने यहाँ पे रहना है, वो रहेगा आपकी किसी प्रॉपर्टी में रहेगा, और उससे अल्टीमेटली क्या होगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। तो डिपार्टमेंट भी कमिटेड है, हमारा डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म जो है वो कमिटेड है कि हम यहाँ की टूरिज़्म प्रमोशन के लिए बहुत काम करें। इसमें बहुत सारी पॉलिसीज़ टाइम टू टाइम बनती आ रही है और आगे भी बनेंगी। जैसे रिसेंटली एक हमारा लद्दाख होम स्टे पॉलिसी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने लॉन्च किया था, जिसमें हमने इस साल एप्लीकेशंस इनवाइट किए थे होम स्टे के लिए। तो करगिल में लेस से भी ज़्यादा हमें एप्लीकेशंस आई थी, जिसमें 1600 अराउंड 1600 हमें एप्लीकेशंस आई, जिसमें हमने फिर वेरीफाई किए 1200 के करीब उसमें हमने एलिजिबल पाए हैं, जो हमने आगे यूटी लेवल में भेजे हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ हैं, जैसे हम सस्टेनेबल टूरिज़्म की बात करते हैं तो डिपार्टमेंट का एक कमिटमेंट है कि हम उस तरफ जाएं। इसलिए लद्दाख जो एसटीपी पॉलिसी है वो भी रिसेंटली लॉन्च हुई है, ताकि हम जो भी हमारी टूरिज़्म यूनिट्स हैं वो कैसे, मतलब उसमें स्वेज जो ट्रीटमेंट सिस्टम है वो कैसे चले, उसके लिए बिग पॉलिसी आई है। इसके अलावा एडवेंचर टूरिज़्म पे अगर बात करें तो लद्दाख माउंटेनियरिंग पॉलिसी भी रिसेंटली यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको पब्लिक डोमेन में लाया है। और टाइम टू टाइम बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ हैं जो हम डिफरेंट हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, अगर उनकी तरफ से हमें डिमांड आती है कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। सबसे पहले बस एडी टूरिज़्म मिस्टर रहमतुल्लाह साहब, प्रिंसिपल मैडम साहिबा, दुना अक्टा के आए हुए मेंबरान, दुना नती डिग्री कॉलेज स्टूडेंट सब बोमो बुथान गामा व यंग जुक्सलकन तमाम मेहमानान को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुदावंद आलम इस बस शुरू का खुदाला हम्द व सिपास बस फिज़ला खुदावंद आलम कलम ज़रीका ngata ilm sabs अल्लमल इंसान मा लम यअलम, कि इंसान
Amas kes pekana Jan Samet bin di insan pula udas ilm zarika sarfaraz bas Chana azizan kun daksadiyan nuk ngala tafamet bin ya motu 6-7 bajī gana funcions Chana degree college gadizos program chiotes amma chi program ezerbo ngarta famet bin Chana daksadiyan hebana pata sumnata tourism na du tourism nun saligit pana ज्ञानु ज्ञानता सवाल जवाब सों यंतन गम्मी के नटिस टूरिज्म इबारियानु चिबाल गोशाजिन ची क्वेश्चन चिक दरसी नमज़ेयानु गति बोमो बुछानी ज़हनियानु दुख टूरिज्म ची फेरस गतिस प्रमोट बसे इन चीज़ इसनारेना गतिस टूरिस्ट यों मत भी कोशिश बस इन दुनिया या उन्होंने अक्सर नकाती जहान या उन्होंने स्नल लगाता दी हिसाब से टूरिज्म ना लगाता दी हिसाब तरक्की में पिन अम्मा दसे अल्हम्दुलिल्लाह टूरिज्म इस तरीका नती कल्चर पु मुहिम तरीन चीज़ पुदुई नती डिस्ट्रिक्ट करगिली या खत्ते लद्दाख ही दसना रेना दुनिया या उन्होंने चुप चसिन ना इतु योंगे चुप जितो दसना रेना कल्चर इस पर आप ही मना अच्छा ईरान अनुसिले युक्तनस दुयंती फरे तजुर्बा इन दसा दिया नु डिस्कस सोंग नती दिया नु नोनो चीज क्वेश्चन सांग बस नती कल्चर ही बारे नु टूरिज्म जुमिन की मिसाल के तौर पर टूरिज्म यों मना ngata zasna rene building un mana 7 टी कर सोचा बाकी ngate zasna rena कसम उन्हें नाउन जो से नक्शान जो से दून ख्वान zasna rena stanma ख्वान दून मथुमा medde ngati dia nuk medkhan ची खोंग zasna rena तायों से और दी इलाके कल्चर पुछिदु ख्वे zasna rena Zajat hunjas puchidu, kui dolzolanzo chidu, kui culture puchidu, dulasta yon se in. Chana nates nati culture pu kharab me bar wishazin. Chana nati culture pu ngate dunia yang wonchu tu samzes narina. Nates nati language kuni anu changing mathum. Ngara ngade nazari anu dechi ngade tajurba ngatang bachik कल्चर या अनुजस्ता रहना नती जिले लेस जस्ता रहना आगे यो जब ख्वेस मने यार तो दे तालीम या अनुगचुक खुरम आगे योद ना गचुक जस्ता रहना हाँ एलुमी जस्ता रहना ओजिकल है जोदना ओदे देना प्रोफेसर पुस ओदे जस्ता रहना तालीम या तो स्टेट के यों से ना जस्ता रहना खुंती लैंग्वेज को इस्तेमाल में नातिंगम में हिसाब को ngate zasna reno कोशिश में इंग्लिश का सोहबत बा फॉरेनर zasna rena लैंग्वेज का ngate ज़रबना या वो द्यूना मना लेक सिना तरक्की सोंसो दुक इल्मी अनु बाहर दुक ज़रे या फारसी का अरबी का मायूना द्यून zasna reno ngate Initiative of Ministry of Tourism, the Government Degree College Kargil has been successfully registered as a club under the Yuva Tourism Club as of 25th September 2024. A huge round of applause again, my dear students. Respected AD Tourism Sir, Principal Ma'am, Kaka Zahir, General Secretary, Afta, my fellow colleagues, all faculty members, और dear students. लगता है आप टूरिज्म वाले कितने हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स? जरा हाथ खड़े कीजिए ना। टूरिज्म के स्टूडेंट्स नहीं, कोई ऐसे बस हैंड हाथ ऊपर कीजिए। ठीक है। और बाकी मिक्स है, तभी पीछे बिल्कुल
क्योंकि मैं देख रहा था पहले, तब से जब हमारा डिस्कशन भी चल रहा था, तो मतलब पीछे बिल्कुल सब अपना टाइम पास कर रहे थे फोन वोन पे। अब आपने हम लोगों को यहाँ बुलाया है तो थोड़ा सुन लीजिए, हमें भी अच्छा लगेगा, है ना। तो ऐसा थोड़ा सा इंसल्टिंग लगता है। तो मुझे यहाँ पे एक्चुअली बुलाया गया था एडवेंचर टूरिज्म के बारे में थोड़ा सा बताने के लिए। मेरे पास कोई प्रेजेंटेशन नहीं है, एंड में एक 10 मिनट का फिल्म है, अगर आप ये चल रहा है तो हम वो प्ले कर देंगे। और थोड़ा सा बट कुछ 1-2 पॉइंट्स जो मैं थोड़ा टच करना चाहता हूँ। तो जैसे इन्होंने कहा, मेरा नाम मुजम्मिल हुसैन है और मैं हमारा एक ट्रैवल कंपनी है, उसका नाम रूट्स लद्दाख है। पिछले आज हमारे 10 साल पूरे हो गए हैं। 2014 में हमने करगिल में स्टार्ट किया था। हम यहीं से हैं, आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, बस आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। और जब हमने 10 साल पहले स्टार्ट किया था, तो जैसे काका ज़हीर ने भी कहा कि जब आप गूगल करते थे करगिल को, तो जो इन्फॉर्मेशन मिलता था करगिल के ऊपर, एक तो बहुत कम इन्फॉर्मेशन था, और जो भी था थोड़ा बहुत वो आपको करगिल वॉर से रिलेटेड था। तो करगिल का जो नाम है करगिल वॉर से सिनोनिमस है ना, मतलब जब कोई बाहर वाला जब आता है यहाँ पे, तो करगिल जब नाम सुनता है तो करगिल वॉर जो उसके माइंड में आता है। लेकिन जब अगर हम थोड़ा और एडवेंचर टूरिज्म की हिस्ट्री में अगर जाएं करगिल के, लद्दाख के और खासकर करगिल के, तो शायद बहुत आप में से बहुत लोगों को ये इल्म होगा कि जो हमारे एडवेंचर टूरिज्म से जो सिनोनिमस चीज है वो माउंटेनियरिंग है करगिल में, खासकर जो सुरु वैली में। नुन कुन जो हमारे 2 बड़े पीक्स हैं, जो सियाचिन रेंज के बाहर लद्दाख हिमालयस के 2 हाईएस्ट पीक्स हैं, दोनों 7000 मीटर से ऊपर हैं। एक नुन जो है 7135 मीटर है, जो कुन है 7777 मीटर के, जो 2 मैसिव जिसको बोलते हैं। और जो हमारा एक क्राउन ज्वेल की तरह जब आप सुरु वैली में ड्राइव करके जाते हैं तो बहुत ही खूबसूरत नुन और कुन का पहाड़ दिखाई देता है। और एडवेंचर टूरिज्म की बहुत पुरानी हिस्ट्री है करगिल में, कि सबसे पहले 1894 में नुन और कुन को डिस्कवर किया गया था, और 1913 में जो है नुन को चढ़ा गया था, और 1953 को क्या बोलते हैं उर्दू में, 1953 में कुन को चढ़ा गया था। और वो चढ़ने वाले लोग थे यूरोपियंस, फ्रेंच लोग थे, और नेपाली शेरपा टीम थी। और इंटरेस्टिंगली कुन में कुछ हमारे डोमेस्टिक इंडियन की एक टीम थी, जो उन्होंने मिलकर ये पीक क्लाइंब किया था। तो बहुत पुरानी हिस्ट्री, और तब से लेके आज तक जो है नुन कुन में बहुत सारे एक्सप्लोरेशन चलते हैं। लेकिन हमारी जो एडवेंचर टूरिज्म की हिस्ट्री है वो सिर्फ वहाँ तक महदूद नहीं है। हमारे करगिल का जो पोटेंशियल है, हम लोग खुशकिस्मत है कि हम ऐसे लैंडस्केप में रहते हैं जहाँ पे एडवेंचर के लिए और आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सिर्फ माउंटेनियरिंग ही नहीं, रॉक क्लाइंबिंग हो गया, ट्रैकिंग हो गया, राफ्टिंग हो गया, विंटर में स्कीइंग हो गया, ये सारे एक्टिविटीज़ जो हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं हवा में बोल रहा हूँ, ये सारी एक्टिविटीज़ हमारे यहाँ पे होती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट बात ये है कि अभी हम कुछ 2 हफ्ते पहले हमने एक ट्रैकिंग कोर्स कराया था यहाँ पे करगिल में। IISM करके एक इंस्टीट्यूट है गुलमर्ग में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग एंड माउंटेनियरिंग करके। पिछले 2-3 साल से हम लोग यहाँ पे उनके साथ कोर्सेज करा रहे हैं, और विंटर में स्कीइंग के कोर्स करते हैं। समर में इस साल हमने 2 ट्रैकिंग के कोर्स कराए थे उनके साथ, उसमें 40 कोर्स में, और एक भी पार्टिसिपेंट हमें करगिल से नहीं मिला। यहाँ पे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं यूनिवर्सिटी के, आपके प्रोफेसर लेक्चर, वहाँ भी हमने कम्युनिकेट किया। हमने कहा कि अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, आपके बच्चे अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप, और महज 5000 रुपये का फीस है, 10 दिन का कोर्स है, और एक सर्टिफिकेट कोर्स है। मतलब इसके बाद स्पेशली जो बच्चे टूरिज्म में है या जो आउटडोर में इंटरेस्टेड है, उनके लिए एक बेनिफिशियल कोर्स भी है। तो एक भी बच्चा नहीं आया एंड तक, और हमें लिटरली 15-20 बच्चों को, 30-25 बच्चों को हमें स्पॉन्सर करना पड़ा उस कोर्स को कंडक्ट करने के लिए। हमें स्कूल से बच्चे लाके ये कोर्स कंडक्ट करना पड़ा। तो कहने का मतलब ये है कि कहते हैं ना कि वो घर की मुर्गी दाल बराबर है। मतलब वहाँ पे साउथ से बच्चे आए हैं, फॉरेन कंट्री से बच्चे इन कोर्सेज को करने के लिए आते हैं, लेकिन हमारे बैकयार्ड में इतने सारे अपॉर्चुनिटीज हैं और आप लोग खुद उस चीज़ का फायदा नहीं उठाते हैं। और तो इस बात का बहुत दुख होता है कि हमारे अपॉर्चुनिटीज होते हुए भी आप लोगों को दिखाई नहीं देता है। अगर आपने टूरिज्म एज अ कोर्स लिया है तो मुझे ऐसा लगता है, ये उस दिन मैं रवीश सर के साथ भी डिस्कस कर रहा था कि सर हमें ये नहीं समझ में आता है। एक सवाल मैं जानना चाहता हूँ कि जो बच्चे स्पेशली जो टूरिज्म मैनेजमेंट का कोर्स लेते हैं, उनका
विजन क्या है, मतलब वो क्यों ले रहे हैं ये कोर्स? क्या ये रीज़न है कि और कुछ ऑप्शन नहीं मिला तो ये लिया, या जेन्युइनली पैशनेट है इस बारे में? तो ये एक सवाल जो है मेरे मन में, आई होप इस प्रोग्राम के एंड में शायद वो क्लियर हो जाए। लेकिन कहने का मेरा मकसद ये है कि अगर आप इसको एज ए कमर्शियल एक्टिविटी भी नहीं देख रहे हैं, एज ए करियर भी नहीं देख रहे हैं, तो आउटडोर एक ऐसी चीज़ है जो मैं पर्सनली कहता हूँ, क्योंकि मेरे को ऑलमोस्ट 15-20 साल हो गया आउटडोर्स में काम करते हुए, और मेरा पैशन है रॉक क्लाइंबिंग करना और ट्रैकिंग करना, और पिछले बहुत सालों से हम यहाँ एक्सप्लोर कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे दुबा अली सर ने भी पहले कहा कि एक आपको अपना एक कैरेक्टर बनाना है, तो आउटडोर में ही जाके आपका अपना कैरेक्टर बिल्ड होता है, आपको समझ में आता है कि आपका कैरेक्टर क्या है। वर्ल्ड टूरिज्म डे इज ऑल अबाउट टूरिज्म एंड वर्ल्ड पीस। तो टूरिज्म जो है बहुत करें तो बात हिंदी में ही करते हैं, शायद वो बेहतर रहेगा। तो किसी भी कॉन्फ्लिक्ट का अगर हम लॉन्ग टर्म रेजोल्यूशन है, उसका कोई समाधान ढूंढते हैं, तो वो इंटरेक्शन में है और एक्सचेंज में है, वो म्यूचुअल बेनिफिट्स में है, कल्चरल शेयरिंग में है। और अगर जब हम इन सब बड़े बड़े शब्दों की बात करते हैं तो ये आपको एक ही चीज़ के अंदर मिलता है, वो मिलता है टूरिज्म के अंदर। और टूरिज्म सिर्फ इस चीज़ का नहीं कि लोग आएंगे, होटल बनेगा, क्योंकि अब हम काफ़ी इंटरेक्शन, हमारा एक इंटरेक्टिव सेशन पे था, हमने काफ़ी बातचीत की, लेकिन मैं मुख्तसर इतना कहूँगा कि हमारे पास कारगिल में सब लोग ये कहते हैं कारगिल चंग मिंदुक, कारगिल चंग यंच मिंदुक, कारगिल में कुछ नहीं है, कुछ नहीं हो सकता। Heads off to the entire team of Suru Fest, people like Muzammil, कि भाई बहुत पोटेंशियल है। अगर आज हम, आई विश कि आपने मेरे ज्ञान से ज़्यादा अगर हम ये वीडियो देखते वुड हैव बीन मोर बेनिफिशियल, वो एक अलग चीज़ है। अब आगे हूँ तो मैं छोड़ूंगा भी नहीं मौका। तो दूसरी चीज़ ये है कि देखिए, छोटी सी चीज़ ये है, खासकर उन बच्चों से जो टूरिज्म से जुड़े हुए हैं, आप सबसे पहले तो हम रिक्वेस्ट ये करेंगे कि भाई आप अपने घर से बाहर निकलिए और अपने एरिया को एक्सप्लोर कीजिए। आप अंजुमन जाइए, आप अपने हिसाब से जो, या आज आप सुरू फेस्ट जाएंगे, आप अपने हिसाब से पोटेंशियल सोचिए कि भाई इस चीज़ में क्या मैं वैल्यू एडिशन कर सकता हूँ, क्या इस प्लेटर पे। क्योंकि आज जब आप सुरू फेस्ट को देखेंगे, या जब चाहे लद्दाख के अंदर हो, कारगिल में हो, कहीं भी हो, जब आप दो सक्सेसफुल लोगों को देखते हो तो ये मत देखो कि यार ये आज सक्सेसफुल है तो आज सीधे मैं उस जगह पहुंच जाऊंगा। आप ये देखिए कि उसके पीछे उस इंसान ने क्या क्या चीजें सेक्रीफाइस की हैं। दूसरी चीज ये है कि जब इमरान है, मुजम्मिल है, फिरोज है, एवरीवन, इवन माई सेल्फ, मैं यहाँ पे आज मुझे वापस आए हुए 6 साल हो गए, बट यहाँ आने से पहले अगर टूरिज्म में पोटेंशियल इस जगह में नहीं होती तो मैं दिल्ली जॉब करता था 20-25 साल से। मैं एक अच्छा लुक्रेटिव जॉब था, मैं अपना जॉब छोड़ के शायद नहीं आया होता। और एक करियर के उस एंड पे जिस जगह लोग करियर स्विच करना सोचते भी नहीं है, मैं करियर तो नहीं, मैं अपना कंप्लीट प्रोफेशन स्विच कर चुका हूँ, क्योंकि मैं एक इंटायरली मैं डिफरेंट प्रोफेशन से आता था। मुजम्मिल का भी अगर आप देखोगे तो ही हैज अ डिग्री ऑन अ कंप्लीट डिफरेंट थिंग, ही वाज इन सिम्बायोसिस पुणे एंड ऑल, हैड एजुकेशन फ्रॉम द बेस्ट। तो अगर हम आज रूट्स में वापस आए, यही इमरान के साथ भी, और लोगों के साथ भी है, तो ये मत देखिए कि भाई ये कामयाब है तो यही चीज करनी है। आप ये देखिए कि इसी चीज के अंदर, आज मैं बोलता हूँ हमारे, हम एथनिक फूड की हमने बात नहीं की, हमारे फूड में बहुत पोटेंशियल है। हॉस्पिटलिटी सेक्टर में हमें चाहिए कि हमें लोग आके कहते हैं कि भाई वो व्हाई डोंट यू कैटर लोकल फूड, लेकिन हम लोकल फूड कहाँ से कैटर करें जब हम खुला और पापा खुद शायद नहीं खाते घर पे, जिस तरह अली साहब ने पहले जिक्र किया। तो ये चीज़ है कि culinary स्किल्स में हमें फिनांस चाहिए। और मैं क्योंकि यहाँ पे I'll just cut it very short, यहाँ पे लड़कियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि खुल के आ जाइए, आप लोग बाहर निकलिए, क्योंकि टूरिज्म इंडस्ट्री की एक सबसे बारीकी चीज़ क्या है। मैं आपका शुक्रिया करता हूँ कि आप यहाँ पे आए। जैसा कि आप जानते हैं कि आज वर्ल्ड टूरिज़्म डे है, तो उसी इवेंट को सेलिब्रेट करने के लिए आज हम GDC कारगिल में आए हैं और वर्ल्ड टूरिज़्म डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस ईयर का थीम जो है वो टूरिज़्म एंड पीस है। जैसा आप जानते हैं कि आज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, तो इस साल का जो थीम है टूरिज़्म एंड पीस, तो क्योंकि टूरिज़्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बिल्ड करता है ह्यूमन कनेक्शंस। लोग आते हैं, आपके एरिया में आएंगे, एक कनेक्शन बनता है, कल्चरल जो यहाँ का हिस्ट्री है उसको जानते हैं,
एक ह्यूमैनिटी के एस्पेक्ट से एक कल्चरल बॉन्ड डेवलप होता है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि टूरिज़्म जो है एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर है जिससे मतलब पीस को प्रमोट किया जा सकता है। उसी तरह हमारे कारगिल में डिफरेंट रीजन्स हैं, इसका अपना कल्चर हिस्ट्री है हर एक एरिया की। तो मैं यही गुजारिश करूँगा जितने भी टूरिस्ट हैं, चाहे डोमेस्टिक है इंटरनेशनल टूरिस्ट है, कि वो आए यहाँ के डिफरेंट रीजन्स में जाएँ, आप कल्चरल हिस्ट्री यहाँ की देखें। यहाँ का रिच कल्चर हेरिटेज है जो बाकी रीजन से इसको डिफरेंशिएट करता है। यही बात है। बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया। इस कदम में हम आगे बढ़ने की इस साल कोशिश कर रहे हैं। हमने अपने बजट में प्रपोज किया है कि हमने साइनेजेस डिफरेंट लगाने हैं। आपके जितने भी टूरिस्ट साइट्स हैं और इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं, जैसे आपने बस स्टैंड का नाम लिया, टैक्सी स्टैंड का नाम लिया, तो हम इस साल वहाँ पे साइनेजेस भी और जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू अवर कारगिल वो हम इस साल प्रिंट और पब्लिसिटी उसकी भरपूर करेंगे इस साल। थैंक यू सर।